अंतर्राष्ट्रीय खेल संगोष्ठी का समापन, खेल प्रशिक्षण में नवीनतम तरीकों पर चर्चा। तिरुवनंतपुरम में आयोजित 4 दिवसीय संगोष्ठी में खेल विशिष्ट शक्ति और कंडीशनिंग पर चर्चा हुई। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय और एथलेटिक महासंघ तिरुवनंतपुरम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल संगोष्ठी 26 फरवरी को संपन्न हुई। 4 दिवसीय संगोष्ठी का विषय खेल विशिष्ट शक्ति और कंडीशनिंग स्प्रिंट और 2026 था, जिसमें खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में नवीनतम वैज्ञानिक तरीकों पर चर्चा की गई। समारोह का उद्घाटन केरल के कुलपति डॉक्टर मोहनन कुन्नुमल ने तिरुवनंतपुरम के ओबई तामरा होटल में किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है, वहीं यह उपलब्धि खेल के क्षेत्र में भी संभव होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के पिछले 10 सालों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। देश ने आर्थिक, डिफेंस और स्टार्टअप सेक्टर में तरक्की की है, वह स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए खास ट्रेनिंग की जरूरत है और इस तरह के इंटरनेशनल सिम्पोजियम इसमें मददगार होंगे। And this international symposium on sports specific strength and conditioning in sprints and jumps. It's a highly focused program. And why are we conducting such a focused program? Generally, we used to have some strengthening program for the entire sports, and you make sportsmen aware of all these things so that they are strengthened, they are made enabled. But this is a highly focused, specific program on sprints and jumps and strength and conditioning. In fact, we are living in a world where specialization is very important. I'm taking from my profession. I'm a radiologist. And I have undergone medical curriculum, general MBBS. But then I had to work on radiology. So I again underwent training for 3 years so that I became a radiologist. Now I want to again focus on interventional radiology. Again I will have to train 3 years. So this focusing on specialization is the thing of the present generation. That is what we are doing. ओलंपिक मेडलिस्ट PR श्रीजेश ने इस मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ओलंपिक के मकसद से हमारे युवा एथलीटों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुंचाने में कोच अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे स्पोर्ट्स का क्षेत्र दिन ब दिन बदल रहा है, कोचों को इस क्षेत्र में नई जानकारी और टेक्निकल जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य के एथलीटों और देश के स्पोर्ट्स सेक्टर के प्रति कोचों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। As I ended my career last year, I jumped into coaching, and I knew that most of the times I tried to copy paste all what I learned from my last 20 years of career. But it's really important that we need to update our knowledge. That's the important part, because every day the sports is changing, the sports is developing, and the training methods are changing a lot. And we coaches intend to learn it, and we need to try it, because the coaches are here. Not everyone is training with the international athlete or not the elite level. Most of them are working within the schools or universities or in the club level or academics level. It's really important for us to enhance our knowledge, apply it, and develop the players from the grassroots level. We need to teach them the scientific method, and we need to teach them the right basics so that their pathway towards their excellence should not interrupt anywhere between to their career life. इस फंक्शन की अध्यक्षता LNCTE के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रदीप दत्ता ने की। इसमें नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सुंदर रथ, केरल ओलंपिक एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SN रघुचंद्र नायर, PEFI के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पीयूष जैन, NSNIS के डिप्टी डायरेक्टर जनरल विनीत कुमार, ग्वालियर LNIPE की वाइस चांसलर प्रोफेसर कल्पना शर्मा और अन्य लोगों ने वेलकम स्पीच दी। इंटरनेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर प्रोफेसर कार्लो ए बुसिसेली ने फंक्शन को संबोधित किया। Welcome everybody. Thank you for having me for the second time in Trivandrum in 14 years. Last time was 2012. If we have a third time, please before 14 years, because I'm not getting any younger. So I'm here proud, honored, and thankful. I'm proud of the athletes that are joining us today. They are making me part of their journey to master their own event.
my coach at the University of Texas says that any athlete should be a master in his own event. So I'm honored to be part of your journey toward this mastery. सिम्पोजियम में एथलीट की स्ट्रेंथ और फिटनेस बढ़ाने के नए तरीके बताए गए। प्रोग्राम में इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने एक्सपर्ट्स और नेशनल लेवल पर जाने माने कोच शामिल हुए। ये सिम्पोजियम जो स्प्रिंट और जंप्स पर फोकस था 1 मार्च की शाम को LNCPE में खत्म हुआ। चीफ गेस्ट तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर श्री VV राजेश ने वॉलेंटरी सेरेमनी में एक मजबूत प्रोग्रेसिव देश बनाने के लिए हेल्थी यूथ पॉपुलेशन डेवलप करने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने भारत के सपोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए साइंटिफिक ट्रेनिंग सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। केरल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वी सुनील कुमार ने सिम्पोजियम के सफल आयोजन के लिए ऑर्गेनाइजर, रिसोर्स पर्सन और पार्टिसिपेंट्स को बधाई दी और एथलेटिक्स में साइंटिफिक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की पहल की तारीफ की। खेल रत्न अवार्डी और इंटरनेशनल एथलीट श्रीमती बीना मोल, APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर श्रीमती सीसा थॉमस, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जी किशोर ने इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित किया और पार्टिसिपेंट्स को एडवांस साइंटिफिक टेक्निक का असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हिम्मत दी। इंटरनेशनल रिसोर्स पर्सन, इंटरनेशनल स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर मिस्टर कार्लो ए बुजीचेली ने सिम्पोजियम से जुड़कर अपनी खुशी और सम्मान जताया और डेलीगेट्स के हाई लेवल के जुड़ाव और उत्साह की तारीफ की। 4 दिन का इंटरनेशनल सिम्पोजियम भारत में साइंटिफिक स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रैक्टिस को आगे बढ़ाने और देश के हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स फ्रेमवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है।